we will learn about the steps to understand transaction. In the first video, we learn about the economic and non-economic transaction, cash and credit transaction. Now the remaining 3 points we'll learn in this video, that is twofold effect of transaction, types of account, rules of debit and credit. Here we start with the twofold effect of transaction. Now under double entry system, which is also known as dual entry system, it means two entries are done for each transaction. It means that transaction is going to break into the two parts. Normally business transaction is between the two parties are as follow. First one, any person take benefit of business or give benefit to business. At the time any person या तो वो benefit लेता है business से या तो benefit देता है. It means at the one time the first effect, now here first effect and second effect, it means एक ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है जहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट भी होगा और सेकेंड इफेक्ट भी होगा. In the one single transaction, the name can be a receiver or it can be a giver. For the explanation I have put in the one single table, but at the time या तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा या तो फिर सेकेंड इफेक्ट आएगा, जहाँ पे रिसीवर का नाम हमेशा फर्स्ट इफेक्ट में रहेगा और गिवर का नाम सेकेंड इफेक्ट में रहेगा. For more understanding, we are going to go in the detail with some illustration solution. If you have any confusion related to this, we are going to clear it out in the next of the video. Next, second point. Here, increase or decrease in goods, cash and asset, where the real account is activated. Now this real account is something new for you, but in the same video we are going to learn about the real account as well. Real account activate होता है जब goods, cash या asset की बात की जाए. Here I have put the first effect and the second effect. First effect, अगर goods को खरीदा है, when the goods is coming into the business, it known as an purchase account. goods कब अंदर आता है जब हम खरीदते हैं और खरीदना माने परचेज. सो वी नेवर राइट गुड्स अकाउंट, वी ऑलवेज राइट परचेज अकाउंट. सो परचेज अकाउंट इज गिवन इन द फर्स्ट इफेक्ट और परचेज की पोजीशन ही फर्स्ट इफेक्ट में रहती है. इट नेवर कम्स टू द सेकेंड इफेक्ट. नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड इफेक्ट. गुड्स गोज आउट. गुड्स किस तरह से बाहर जा सकता है? जब हम गुड्स को बेचते हैं, और बेचना माने सेल्स, और यहाँ पे इन दी अकाउंटेंसी वी राइट सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट, आफ्टर गुड्स we'll learn about the cash. Second step. Now cash can comes in or cash can goes out. जब comes in कहाँ पे? बिजनेस में. जब कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट फर्स्ट इफेक्ट में आएगा, और अगर कैश जा रहा है बिजनेस से तो कैश अकाउंट सेकेंड इफेक्ट में आएगा. सेम फॉर द असेट. asset comes in will give effect in the first effect, and when asset is going out it comes to the second effect. In simple form I'm just showing you कि exact उनकी पोजीशन कहाँ पर है. यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट में every time you can see when it is coming in it is coming to the first effect, and when they are going out it is given to the second effect. परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट ये एक टाइम पे यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम कभी नहीं आते. या तो परचेज आएगा या तो सेल आएगा. आई एम जस्ट शोइंग यू द कंपल्सरी एंट्रीज. ये कहाँ पे आते हैं यू विल अंडरस्टैंड while गोइंग टू द इलस्ट्रेशन सोल्यूशन. नेक्स्ट, थर्ड, बिजनेस में सिर्फ लोगों का नाम या फिर गुड्स, cash, asset is not only going to come but it will also comes with the expenses and the income, जिसके लिए बनाया गया है थर्ड पॉइंट. either expenses incurred or revenue is realized in the business which is known as a nominal account. nominal account activate होता है जब expenses या incomes आते हैं transaction में. now in the first effect
all kind of expenses. The detail will be explained you, don't get confused. Expenses related सारे ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट रहते हैं इन द फर्स्ट इफेक्ट एंड द इनकम्स रिलेटेड सेकेंड इफेक्ट में अकाउंट्स जाते हैं. ओके, now when business transaction takes place, two effects emerge from it. This effect should be studied keeping in the mind above mentioned explanation. These all things have to be written in your notebook. For sure, in the first explanation, there would be a confusion to understand these 3 points, but I'm going to explain you illustration 3, which is given in your textbook, page number 30. Which two effects would take place from the following transaction? Dual effect of all the transaction means two effect. Now this two effect which is written as in first effect or the second effect. First effect which is given in the first column and the second effect at the second column. Now as we can see the first transaction. In the first transaction it is written Manoj commenced business with introduction of capital of rupees 20,000. Now while reading this, as we all know, we already done about economic and non-economic transaction, cash and credit transaction. So transaction, business transaction look like this. On your page number 30 of your textbook, you will get illustration number 3. Now the same question I have copied here. Now here Manoj commenced means Manoj have started a business with the cash of rupees 20,000. Now before I explain this transaction, I want to get clear with you that Manoj is a separate person and his business is the separate person. As we are learning account, you people look at the transaction as an accountant. आप अपने आप को समझो कि आप किसी के बिजनेस का अकाउंट बना रहे हो और मनोज एक पर्सन है, एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस चल रहा है. जस्ट टेक देम टू सेपरेटली. इन द फर्स्ट चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन यू, अगर कोई पर्सनल यानी कि मनोज अपना पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल. अगर बिजनेस में से अपना पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए करें तो ये बिजनेस के लिए बोला जाता है ड्रॉइंग. नाउ हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी आर मेकिंग अ ट्रांजैक्शन. हम जो अकाउंट बना रहे हैं वी आर मेकिंग अकाउंट फॉर बिजनेस. हम एक अकाउंटेंट है और हमें सिर्फ बिजनेस के व्यू से ही अकाउंट देखना है. सो हियर आई एम स्टार्टिंग, हैव टू राइट. सबसे पहले whenever you start with the transaction, very simple formula to understand your transaction. What we learn first step that is it economic and non-economic transaction. Obviously ये देखते ही हमको पता चलता है it is your economic transaction. Second step to make you understand is it a cash transaction or credit transaction. तो ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन. यहाँ पे लिखा है कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन ही है. अब बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि हम बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा सबसे पहला व्यू होता है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट. जैसे ही पता चले कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, अब बताओ कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है. ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा आ रहा है. ओके, सो व्हेन कैश इज कमिंग इन द रियल अकाउंट वी लर्न कि ये हमेशा रहता है in the first effect. So here we write cash account. In the short form account को A/C में लिखा जाता है. अब आएगा second effect. What we are doing, we are breaking one single transaction into the two parts. Okay? Always remember first part क्या रहेगा. That we learn over here the 3 points. These are the some compulsory entries which have to be done. इसीलिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैंने बताया है कि कैश अकाउंट हमेशा फर्स्ट इफेक्ट में रहता है अगर पैसा आ रहा है. और एज पर दिस ट्रांजैक्शन वी कम टू नो कि यहाँ पे पैसा आ रहा है, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है. रिमेंबर
पैसा कहाँ आ रहा है? बिजनेस में. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर द अकाउंटेंट मेकिंग अ अकाउंट ऑफ बिजनेस. हमको सिर्फ बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना है. यहाँ पे बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट फर्स्ट इफेक्ट में रहेगा. अब जब मनोज अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो ये बिजनेस के लिए बन जाता है कैपिटल. सो हियर विल राइट कैपिटल अकाउंट. Hope you people understand. Now moving to the second transaction. An account is opened with the State Bank of India by depositing rupees 40,000. Now, simple mantra to understand your accountancy. If you are not understanding the language of textbook, make it in your own language. For example, I'm going to explain you in Hindi. अब यहाँ पे हो रहा है कि अकाउंट ओपन किया कौन से बैंक में? SBI बैंक में. बाय डिपॉजिटिंग यानी कि पैसे रखे हमने 40,000 इन द बैंक और हमने अपना अकाउंट ओपन कर दिया इन द SBI. नाउ हियर व्हेन अकाउंट इज ओपन इन द बैंक, दैट टाइम फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? Beside to get confused, just go through the steps what I have told you. ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? डिपॉजिटिंग रुपीज़ 40,000. नाउ डिपॉजिटिंग रुपीज़ 40,000 इट मीन्स ऑब्वियसली द कैश हैव बिन डिपॉजिटेड. तो ये कैश ट्रांजैक्शन है. अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस में पैसा आया या गया? ऑब्वियसली गया. कहाँ गया? SBI बैंक में, राइट? तो गया. जब कैश इज गोइंग आउट, you have to give in the second effect by writing cash account. Now, while solution, it is not at all compulsory to write down from the first effect only. You can write down from the second effect. Just try to understand how I am explaining to you. सेकेंड इफेक्ट में मैंने डाल दिया कैश अकाउंट बिकॉज बिजनेस से पैसा जा रहा है. बिजनेस में से पैसा कहाँ जा रहा है? तो बैंक में जा रहा है. Here I'm just explaining you to break the transaction, so don't worry about the amount. That we'll learn in the third chapter. By the time we are just learning to break the transaction into the two part. So अभी फर्स्ट इफेक्ट रहेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है? तो पैसा जा रहा है SBI बैंक में. तो here we'll write down State Bank of India account. That's it. Let's move to the third transaction. Now here something is interesting going to be start because the year purchase and sold का. And before I explain you the third transaction, let me take you over here. In the second point where I have told you कि जब goods comes in आता है तब हम purchase account बनाते हैं. हम कभी भी goods account नहीं बनाते. Keep this in your mind. We always prepare why the goods is coming in. Obviously we purchase, so we'll write purchase account only. When the asset भी हम खरीदते हैं तब बिजनेस में आता है, पर उसके लिए हम asset account ही बनाते हैं. We'll go in some more details for this point, but always remember we are not making goods account. हम कभी goods account नहीं बनाते हैं. हम अगर goods खरीद रहे हैं तो purchase account will prepare, and if goods is going out by selling तो हम उसके लिए बनाते हैं सेल्स अकाउंट. ये दोनों ट्रांजैक्शन एट द सेम ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कभी नहीं आते. ओके ये या तो परचेज अकाउंट आएगा या तो फिर सेल्स अकाउंट आएगा. दैट वे आई विल एक्सप्लेन यू by looking at this transaction. Here I am on the third transaction where you can see Manoj has purchased goods worth rupees 3,000 from Bharti Bean. अब यहाँ पे मनोज ने गुड्स परचेज किया 3,000 का भारती बेन से. नाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. हाँ है. ओके इट इज़ नॉट नॉन इकोनॉमिक, इट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. Second thing, is it cash transaction or credit transaction? By looking at this,
जस्ट रिकॉल व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू फॉर द कैश एंड क्रेडिट। मैंने कहा था कि कैश ट्रांजैक्शन हो तो कैश लिखा होना चाहिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सिर्फ किसी पर्सन का नाम लिखा होगा कि हमने किससे खरीदा, और नाम लिखने के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है तो वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नाउ एवरी टाइम वेन एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, प्लीज आई नीड योर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम रिपीटिंग अगेन। Manoj has purchased goods worth rupees 3000 from भारती बेन। यहाँ पे भारती बेन आकर स्टॉप हो गया है। फॉर कैश लिखा होता तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता, लेकिन ये फॉर कैश नहीं लिखा है और जिसके पास से हमने खरीदा है उसका नाम दिया है, तो ये नाम मतलब कि ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो हियर जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, यहाँ पे अपना लॉजिक लगेगा ही नहीं। अब हमको जाना पड़ेगा टू द फर्स्ट पॉइंट हियर, पर्सनल अकाउंट। ये तभी एक्टिवेट होता है जब हम उधार से खरीदते हैं या तो बेचते हैं, मैक्सिमम टाइम तब वो ये एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी पर्सन टेक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस और गिव बेनिफिट टू द पर्सन टू द बिजनेस। यहाँ पे या तो रिसीवर का नाम आता है या तो गिवर का नाम आता है। सो गोइंग बैक टू द ट्रांजैक्शन, एज वी कैन सी इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले सिंपल थिंग है कि यहाँ पे जैसे आपको परचेज दिखता है तो परचेज रहता है हमेशा फर्स्ट इफेक्ट में। तो सबसे पहले अगर गुड्स खरीदा है, फॉरगेट अबाउट द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर गुड्स खरीदा है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट दे दो कि ये परचेज है, परचेज गुड्स हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर परचेज क्या हुआ है। अगर परचेज असेट होता है तो असेट का नाम लिखा जाता है, पर अगर गुड्स को परचेज किया है तो परचेज अकाउंट ही लिखा जाएगा। हम कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखते यहाँ पर। सो फर्स्ट इफेक्ट इज डन। नाउ व्हाट वुड बी द सेकेंड इफेक्ट? इन द सेकेंड इफेक्ट हम उसका नाम लिखेंगे जो हमको गुड्स दे रहा है उधार पे, और वो है भारती बेन। सो हियर विल राइट द नेम ऑफ भारती बेन, and here the second effect goes to the Bharti Ben account. Same I will explain you for the next transaction where we can see the sold goods आ रहा है। Manoj sold goods worth rupees 5000 to Vipul. Again the name is written and after the name for cash नहीं लिखा है। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो कैश लिखा होता, पर यहाँ पे नहीं लिखा है तो इट मीन्स नाम दिया है, तो दैट मीन्स दैट्स योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग हियर, एंड बेटर यू पीपल ऑल्सो राइट डाउन फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। हियर इट इज़ योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ व्हेन इट इज़ द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे जो नाम दिया है जहाँ से मनोज ने गुड्स को बेचा है, या तो ये विपुल रिसीवर होता है या तो गिवर होता है। मेनी टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि रिसीवर के साइड यानी कि फर्स्ट इफेक्ट में विपुल का नाम लिखना है या सेकेंड इफेक्ट में विपुल का नाम लिखना है एज अ गिवर। द सिंपल थिंग व्हाट यू कैन सी, मनोज ने परचेज किया है या सोल्ड किया है। अगर सोल्ड किया है तो इट मीन्स सेल्स अकाउंट। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे सोल्ड अकाउंट मत लिख देना, वी ऑलवेज राइट सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट की पोजीशन हमेशा फर्स्ट इफेक्ट में रहती है, और अगर सोल्ड किया है गुड्स तो सेकेंड इफेक्ट में रहता है सेल्स अकाउंट। सो हियर आई एम राइटिंग सेल्स अकाउंट which will be activate if the goods have been sold. Very simple to understand any of the transaction. अगर परचेज किया है तो परचेज की पोजीशन फर्स्ट इफेक्ट में डाल दो, या तो फिर अगर सोल्ड किया है तो सेकेंड इफेक्ट में डाल दो। सी आई एम नॉट गोइंग एज पर दिस कि मैं पहले फर्स्ट इफेक्ट लिख रही हूँ या बाद में सेकेंड इफेक्ट लिख रही हूँ। इट इज़ नॉट हैपनिंग लाइक दिस। आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड पुटिंग फर्स्ट टू द सेकेंड इफेक्ट। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो सेकेंड इफेक्ट में मैंने सेल्स अकाउंट डाल दिया। अब फर्स्ट इफेक्ट में क्या, तो गुड्स किसको हम बेच रहे हैं, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नाम आएगा कि विपुल को बेच रहे हैं। तो हियर विल राइट डाउन विपुल
account. Next, going to the fifth transaction. Goods sold worth rupees 2000 for cash. Now here the word cash is highlighted. यानी कि ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन है. Now, first thing to understand, it is your economic transaction. Second thing, it's your cash transaction. जब भी आपको समझ में आ जाता है कि ये ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन है, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ यही जानना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है. इन द फिफ्थ ट्रांजेक्शन, व्हेन गुड्स इज सोल्ड, अगर आप गुड्स को बेचते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपके बिजनेस का अगर आप बेच रहे हो तो ऑब्वियसली पैसा आता है, राइट? अगर आप कुछ भी बेचते हो तो पैसा आता है, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा कैश इज कमिंग इन. सो आई पुट द कैश अकाउंट एट द फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट क्या? एज वी कैन सी द सोल्ड, एंड आई टोल्ड यू फॉर द सोल्ड सेल्स अकाउंट आएगा और वो हमेशा सेकेंड इफेक्ट में रहता है. सो सिंपल, just write down sales account. That's it. Moving to the sixth transaction. Manoj purchased furniture worth rupees 1500. Now this time we are purchasing goods नहीं, इस बार हम furniture purchase कर रहे हैं और furniture होता है asset. नॉर्मली अगर goods purchase करते तो हम यहाँ पे लिखते purchase account, पर यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर. आई एम गोइंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट फॉर द एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट समझाए थे. पहला, अगर गुड्स आ रहा है तो परचेज, अगर कैश आ रहा है तो कैश, पर अगर असेट आ रहा है तो असेट का ही नाम आएगा. सेम वे, अगर गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, पर अगर गुड्स असेट जा रहा है तो असेट अकाउंट ही आएगा. सेम वे हियर द फर्नीचर हैव बीन परचेज. सो हियर ऑन द पोजीशन ऑफ द परचेज की पोजीशन होती है फर्स्ट इफेक्ट में, तो हम फर्स्ट इफेक्ट में ही रहेंगे, बट विल राइट डाउन द असेट नेम जो हमने खरीदा, फर्नीचर अकाउंट. अब सेकेंड इफेक्ट में क्या आएगा? तो मनोज परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 1500. यहाँ पे ना ही नाम दिया है ना ही फॉर कैश ऐसा लिखा है. अगर यहाँ पे किसी का नाम लिखा होता तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाता, पर यहाँ पे हमें नाम नहीं दिया है. इट मीन्स इट्स योर कैश ट्रांजैक्शन. जस्ट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब आता है? जब किसी का नाम दिया हो और फॉर कैश नहीं लिखा हो, तभी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है. बाकी के टाइम पे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शन होते हैं. सो मनोज परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 1500 एंड द नो नेम इज रिटन, इट इज़ योर कैश ट्रांजैक्शन. सो अगर यहाँ पे आएगा कैश ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट. नाउ हियर ये हमारा कैश कैसे गया? अगर हम फर्नीचर को खरीदते हैं, हमने फर्नीचर खरीदा तो ऑब्वियसली बिजनेस से पैसा गया, इस वजह से भी कैश अकाउंट सेकेंड इफेक्ट में आएगा. नेक्स्ट, सेवेंथ, कमीशन पेड रुपीज़ 200. बाय लुकिंग एट द वर्ड पेड, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, पेड वर्ड itself say it's your cash transaction. Paid माने पैसा गया तो it will come to the second effect by writing cash account. पैसा गया. अब पैसा कहाँ गया? What did we paid? A commission. So we'll write down commission. यहाँ पे एक्टिवेट होता है थर्ड पॉइंट. Again going back to the third point. As I told you कि हमेशा बिजनेस में किसी का नाम, गुड्स, कैश, असेट ही नहीं आता. ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी आते हैं और इनकम भी आते हैं. हमने जो कमीशन लिखा वो कमीशन एक्सपेंस था हमारे बिजनेस के लिए. सो वी रोट कमीशन एट द फर्स्ट इफेक्ट. ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे. आई एम जस्ट शोइंग यू द कंपल्सरी एंट्रीज. वो नॉर्मली कहाँ पे होते हैं? या तो एट द टाइम एक सिंगल ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस आ सकते हैं, या तो एट द टाइम एक सिंगल ट्रांजेक्शन में इनकम्स आते हैं. ओके, बट दिस इज व्हाट देयर कंपल्सरी पोजीशन. अगर एक्सपेंसेस है तो वो हमेशा फर्स्ट इफेक्ट में ही हमको एंट्री देना पड़ता है, और अगर इनकम है तो हमको सेकेंड इफेक्ट में एंट्री देना पड़ता है. व्हेन वी सॉ दिस,
A commission paid rupees 200, commission is our expense. So we put commission account at the first effect. Okay. And as you see the paid word, obviously we can understand it's your cash transaction. And as you come to know it's a cash transaction, very simple, just understand कि बिजनेस में पैसा आया या गया, गया तो सेकेंड इफेक्ट, अगर आया तो फर्स्ट इफेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट, eighth. Now there's some more important for the eighth transaction where it is written Vipul return goods worth rupees 200. अब विपुल नाम आगे ट्रांजेक्शन में आया था, दैट इज ओवर ईयर. फोर्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन में हुआ था कि मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 टू विपुल. यहाँ पे हमने गुड्स बेचा था किसको, विपुल को. अभी विपुल को गुड्स में कोई डिफेक्ट लगा होगा जो उसने रिटर्न कर दिया है. अब वेरी सिंपल स्टेप, ये कौन सा ट्रांजैक्शन था, सेल का ट्रांजैक्शन था, सोल्ड किया था. अब जब इसका रिटर्न आता है तो हम फर्स्ट इफेक्ट में जाके लिखते हैं सेल्स रिटर्न. I'll show you here. Just write down sales return account. That's it. अब ये रिटर्न कौन कर रहा है, तो विपुल. Just write down the name of a person, Vipul account. That's it. Next, ninth. Manoj return goods worth rupees 150 to Bharti Ben. Now Manoj is returning goods of rupees 150 to Bharti Ben. अभी ये भारती बेन का नाम आगे भी आया था, that is over here, third transaction. यहाँ पे लिखा है कि मनोज हैज़ परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 3000 फ्रॉम भारती बेन. हमने भारती बेन से गुड्स खरीदा था. नाउ दिस टाइम वी गॉट सम डिफेक्ट एंड वी रिटर्न इट बैक. परचेज की पोजीशन रहती है फर्स्ट इफेक्ट में, जब उसका रिटर्न होता है तो वो चला जाता है सेकेंड इफेक्ट में. एंड इट्स कंपल्सरी अबाउट कि जब इसका रिटर्न आता है तो परचेज रिटर्न की पोजीशन हमेशा सेकेंड इफेक्ट में ही रहती है. इट नेवर चेंज. अब ये परचेज रिटर्न किसको कर रहे हैं, कौन है जो रिसीव कर रहा है गुड्स, भारती बेन. That's it. Moving to the next. Check of rupees 2850 issued to Bharti Ben. Issue माने we have given, right? So if we have issued, तो पैसा आया या गया, ऑब्वियसली गया क्योंकि हमने पैसा दिया. हमने कैश नहीं दिया है, हमने चेक दिया है, तो पैसा कहाँ से जाएगा, फ्रॉम बैंक. पोजीशन मैंने वही रखी है जहाँ से पैसा जाता है. मैंने कहा था कैश जाएगा तो सेकेंड इफेक्ट में आएगा और पैसा आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट में आएगा. यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, चेक से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक में से पैसा जाएगा. सो यू हैव टू राइट डाउन बैंक अकाउंट एज द सेकेंड इफेक्ट. और ये पैसा जा रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, भारती बेन, तो उसका नाम आएगा इन द फर्स्ट इफेक्ट. That's it. Moving to the 11th one. Vipul gave a check for rupees 4800. Now this time we are receiving check. Check कैश के फॉर्म में नहीं आता है, चेक है ना, तो चेक बैंक में जाएगा और बैंक में पैसा आएगा. तो who will be the receiver? The bank account. और यहाँ पे गिवर कौन है, गिवर का नाम है विपुल जो हमको पैसा दे रहा है. तो here will write विपुल account. Hope you people this illustration is helpful to you to understand, to break the one single transaction into the two effect. Now moving to the next step after finishing this. Okay, one most important, ये जो सारे मैंने tables बनाए थे, all this one is just to explain you exactly. It should be written like this. Illustration 3. Just you have to write down. आपको क्वेश्चन कहीं पर भी कॉपी नहीं करना है in your notebook. You just have to write down illustration 3 with the page number 30 and just write down what you have solved. That is dual effect of transaction in the books of Manoj.
सीरियल नंबर यानी कि ट्रांजैक्शंस नंबर होंगे. फर्स्ट इफेक्ट आप क्या दे रहे हो और सेकेंड इफेक्ट आप क्या दे रहे हो. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्लीज ट्राई टू टेक योर ओन टेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड और नॉट. नेक्स्ट, moving to the next step, types of account. That's the most important. Moving to the next step, that is fourth step. Types of account is divided into the three parts: personal account, real account, and nominal account. Here I also modify this chart from the textbook, but I'm going to explain you the types of account. आगे की जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको समझाए, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउnt. Now let's start with the personal account first. In business, when credit transaction take place, opposite party is a natural person or legal artificial person. Now for this natural person and legal artificial person, I have given you example over here. Now what is natural person? जब किसी का नाम का account हो, that is the natural person. That is Hetal's account, Dharmendra's account, Raman's account. They are natural person where we have wrote the name of the person. Legal artificial person means बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, जीवन ज्योत हाई स्कूल अकाउंट, LIC अकाउंट यानी कि एक इंस्टीट्यूट का नाम. ओके, होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट नेचुरल पर्सन इज समथिंग सेपरेट वन एंड लीगल आर्टिफिशियल पर्सन इज समथिंग सेपरेट. सो पर्सनल अकाउंट कब एक्टिवेट होता है? मैक्सिमम टाइम जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब पर्सनल अकाउंट एक्टिवेट होता है, बिकॉज वी हैव टू राइट द नेम ऑफ अ पर्सन. Due to credit transaction, debtors, that is customer, creditor, that is supplier relation come into the existence between business and the other person. Now here, debtors and creditors, which I have already explained you in the first chapter. Hope you people remember debtors, जो उधार से खरीदता है कस्टमर, उसको बोलते हैं डेप्टर, और जो उधार से बेचता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर. Moving to the next part, real account. ये real account था हमारे beginning का second point. Now in real account there are two types of accounts arise. Maximum time it's a goods account and asset account. Now ये goods account है क्या? Obviously we are never going to write the goods account in the accountancy, but just for the explanation, goods होता है and product which deals with the business are treated as goods. हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बोलते, हम गुड्स बोलते हैं. एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेस हम इनको गुड्स बोलते हैं. ना फॉलोइंग आर द गुड्स रिलेटेड अकाउंट्स. अब ये होते कैसे हैं? या तो ये परचेज, अगर खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट, सेल है तो परचेज सेल्स अकाउंट, अगर परचेज का रिटर्न आया है तो परचेज रिटर्न अकाउंट, सेम फॉर द सेल्स रिटर्न अकाउंट. देन 5, 6, 7, 8 इज समथिंग डिफरेंट. अगर गुड्स विड्रॉ हो रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसका एक अलग अकाउंट. गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है फायर से तो उसका अकाउंट. गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट तो उसके लिए एक अलग अकाउंट. गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, दैट इज अकाउंट. सो हियर in anyhow if goods is going out from the business, we prepare the separate account for it. So ये सारे related to the real accounts. Next, moving to the asset account. Now business is done with the help of asset, where we have the tangible and intangible asset, which we have already learned in the chapter 1 video. Now tangible, which includes account like land, building, plant, machinery, furniture and vehicle, which we can see and touch. Intangible asset are those assets which cannot be seen or touched, but it includes goodwill, copyright, patent, trademark, etc. Now here, if asset is coming in, we'll write down the asset account, and if asset is going out, we'll write down the asset account कि कौन सा asset जा रहा है business से, which we have already done in the illustration 3 with the furniture account and all. Moving to the last point, that is nominal account. Now here some more details have been given related to the incomes and expenses. Let's start with the first one. These accounts of business perform their operation throughout the year. Now these accounts are also known as income expenditure account, because nominal account always activate when incomes and expense come.
Accounts of income, which include like interest received, discount received, dividend received, rent received, or brokerage received, etc. Next, account of expense include wages. Wages माने मजूरी जो मजूर को दी जाती है. Then the carriage, postage expenses, stationery expenses, salary expenses, tax, depreciation. Now here's salary. Maximum time student get confused कि salary तो income होती है. Now I'm just repeating my word. Listen to me carefully. We are the accountant. हम एक बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं और बिजनेस में अगर उसके एम्प्लॉय को सैलरी पे किया जाता है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाता है एंड वी हैव टू सी एट द व्यू ऑफ बिजनेस. तो सैलरी हमेशा हमें एज ए एक्सपेंसेस देखनी है, नॉट एज एन इनकम. नेक्स्ट, okay, some more expenses is there: discount allowed, insurance premium, advertisement expense, bank charges, etc. Now for this, for more understanding these 3 points, personal, real and nominal, you have to solve illustration 4, which is given on your page number 33, and illustration 5 on your page number 36. You can stop the video from here. After solution of illustration 4 and 5, you can continue with the last step of rules of debit and credit, because this will help you to understand much about the rules. The video is going to continue with the next point, that is rules of debit and credit of account. Now we have acquired information of twofold effect in the form of first effect and second effect. हमने जो आगे पढ़ा, फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, वो एग्जैक्टली है क्या. फर्स्ट इफेक्ट मीन्स अ डेबिट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. डेबिट जो आपके लेफ्ट हैंड साइड आएगा और क्रेडिट जो आपके राइट हैंड साइड आएगा, जो मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट चैप्टर. सो द सेम थिंग वी आर रिपीटिंग ओवर हियर. फर्स्ट इफेक्ट जो डेबिट साइड जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है, और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट जो आपके राइट हैंड साइड आएगा. Now here the table have been drawn. The whatever I am explaining here, everything have to be written in your notebook. The table explain the first debit and second credit effect of transaction. यहाँ पे मैंने types of account डाल दिए, personal account, real account and nominal account. These rules can be asked in your exam, so be careful while reading this. These are the same rules which we have learned in the beginning of the video, जहाँ पे मैंने लिखा था रिसीवर जिसका नाम डेबिट साइड आएगा और गिवर का नाम क्रेडिट साइड आएगा. द फर्स्ट पॉइंट हियर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. द फर्स्ट इफेक्ट मीन्स द डेबिट कॉलम यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड. सेकेंड इफेक्ट यानी कि क्रेडिट यानी कि आपका राइट हैंड साइड का इफेक्ट. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे व्हाट की जगह पे मैंने सेकेंड पॉइंट पे डाला था गुड्स, कैश या असेट. Same on the credit side, goods, cash या asset goes out will give the effect on the credit side, that is your right hand side. Nominal, that is debit expenses and losses, and credit incomes and gain. It's the same points I am repeating again, which I have repeated at the beginning of the video. Here we'll understand, this will help you to understand illustration 7, where in the personal account for transaction, the name of natural person or legal artificial person is at the center, which is given on your page number 42. Here is the first transaction, goods sold worth rupees 20,000 sold to Jayashree. Now in this transaction, as you can see, the sold word is given. By looking at the sold, obviously it's your sale transaction. Very simple, just go to the credit side and write down in the second effect, as I told you before कि second effect में ही sales रहेगा, और जैसे ही आपको transaction में sold दिखाई दे तो सबसे पहले तो डाल दो उसको उसकी जगह पे, that is on the credit side sales account. Okay, now moving to the debit side. अब debit side लिखने से पहले सेल हुआ है, पैसा आया या गया वो बाद में देखेंगे, पहले ट्रांजैक्शन को जाके देखो कि ये आपका कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. लिखा है कि गुड सोल्ड वर्थ ₹20,000 एंड सोल्ड टू जयश्री. सोल्ड टू जयश्री, और जयश्री ने पैसा पे किया नहीं किया ये तो लिखा ही नहीं है, पर नाम लिखा है, यानी कि ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड अगेन. नाम देख के ये मत सोच लो कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है.
हमेशा चेक करो कि फॉर कैश या कैश वर्ड यूज़ किया है या तो पेड या रिसीव, ये सारे वर्ड्स ट्रांजैक्शन में यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये पूरे ट्रांजैक्शन में वी कांट सी द वर्ड लाइक पेड, रिसीव्ड, कैश, वी कांट सी, ओनली द नेम ऑफ द पर्सन इज रिटन कि जिसको हमने गुड्स बेचा है, तो ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो उसमें नाम आएगा जिसको हमने उधार पे बेचा है, तो here will come Jayashree account. That's it. The first transaction is finished. Moving to the next. Rupees 10,000 deposited with the Bank of Baroda, which we have already done in the illustration 3, but we'll do it again. Rupees 10,000 deposited with the Bank of Baroda. Deposit किया कैश, पैसा गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बिजनेस से पैसा गया तो सेकेंड इफेक्ट में जाएगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, सो विल राइट डाउन कैश अकाउंट एट द क्रेडिट साइड। पैसा गया कहाँ पे? हु वॉज द रिसीवर? एन आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो हियर एक्टिवेट द नेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पर्सनल अकाउंट को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम नाम के रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा। नेक्स्ट थर्ड, 30,000 पेड टू भूमिका। बाय लुकिंग एट द वर्ड पेड, ये आपका कैश ट्रांजैक्शन है। पेड माने पैसा गया, तो सेकेंड इफेक्ट में यानी कि क्रेडिट साइड आएगा कैश अकाउंट एट द सेकेंड इफेक्ट। पे किया किसको? द नेम ऑफ द पर्सन इज भूमिका। Next, the fourth one. Now here I'm skipping this fourth transaction because it is related to the outstanding, which is quite early to make you understand. So I'm skipping the fourth transaction and the eighth transaction of this illustration. Moving towards the fifth transaction, goods worth rupees 20,000 purchase from Jayashree. वेरी सिंपल थिंग, मुझे ये परचेज दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इफेक्ट में यानी कि डेबिट साइड पे पहले परचेज लिख देते हैं, परचेज अकाउंट। ओके, देन विल सी द सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि परचेज हो गया है, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर हम परचेज करते हैं और ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कैश लिख सकते हैं कि गुड्स खरीदा और पैसा गया, पर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैश नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वाई? बिकॉज द गुड्स वर्थ रुपीज़ 20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री, दैट्स इट। यहाँ से फुल स्टॉप डाल दिया है। फॉर कैश, पेड, रिसीव ऐसे कोई वर्ड नहीं है, और नाम दिया है कि कहाँ से हमने खरीदा है, तो ये नाम बताता है कि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसीलिए यहाँ पे गिवर का नाम आएगा, गिवर गुड्स का गिवर। ओके, so here we'll write down the name of a person, Jayashree account. Moving to the next, rupees 10,000 withdrawn from Bank of Baroda. अब इस बार हमने विड्रॉ किया, आगे हमने डिपॉजिट किया था, नाउ वी आर विड्रॉइंग। व्हेन वी विड्रॉ, अगर हम बैंक में से पैसा निकालते हैं तो बिजनेस में पैसा आया, इसीलिए ये डेबिट साइड आएगा बाय राइटिंग कैश अकाउंट। अब पैसा कहाँ से आया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा से, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा विल बिकम अ गिवर। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, रुपीज 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका। The word received itself say it is your cash transaction. Received means cash comes in, so we'll give the entry on the debit side by writing cash account. Received कहाँ से हुआ, किसने दिया? The name of person is भूमिका, यानी कि गिवर का नाम, यहाँ पे देने वाले का नाम आएगा ऑन द क्रेडिट साइड। अगर कोई रिसीव कर रहा है तो वो आता है डेबिट साइड। Next, eighth. Yeah, eighth I am going to skip, as I told you before. Here I have skipped the fourth and the eighth transaction.
Now, these are the table on the one single transaction. It is just to explain you. Please don't write like this. आपको कुछ इस तरह से लिखना है. By giving the illustration 7, page number 42, just put the 3 columns. Write down serial number where you will give the numbers of the transaction. और आप क्या डेबिट कर रहे हो, क्या क्रेडिट कर रहे हो. By the one single line you have to solve. After understanding, please try to take your test of each and every illustration which I have explained you. Next, illustration 8. अब illustration 8 में we will learn about the real account. real account कब activate होता है? 3 चीज़ों में, cash, goods and asset. If it is coming in, will go to the debit side, and if it is going out, will go to the credit side. So here we start. In real account for transaction of goods asset is at the center, which is given on your page number 43. First, goods of rupees 20,000 purchased from Rohini. As I told you, just see the word purchase, give to the debit side, go and put the position of purchase first. That will help you, at least the one effect you will give. Next, अब purchase किया है, अब हमको देखना है ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन. गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी. अब कहाँ से ख़रीदा है उसका नाम दिया है और बाद में कैश या पेड या रिसीव वर्ड नहीं लिखा है, यानी कि ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. सो हियर द नेम ऑफ अ पर्सन विल कम एज इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो रोहिणी अकाउंट. मूविंग टू द नेक्स्ट, सी goods of rupees 8,000 purchased from Salama on cash. Here the word cash have been highlighted, यानी कि ये आपका कैश ट्रांजैक्शन है. अगर हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो पैसा जाता है. If we go to purchase any of the goods, obviously cash is going out. So very simple, cash is going out. So here I am putting cash account, and by looking at the word purchase, just skip on the debit side, purchase. Just be careful what we are purchasing. It should be purchase goods only. अगर purchase हम asset कर रहे हैं तो यहाँ पे asset का नाम आएगा. Here the third transaction where is already the asset is given. Furniture of rupees 10,000 purchase from Rajesh. अब हम purchase कर रहे हैं furniture. Position debit side ही होगी जहाँ पे हम परचेज लिखते हैं, पर परचेज अगर गुड्स कर रहे हैं तो ही परचेज अकाउंट लिखना है. अगर हम असेट को परचेज कर रहे हैं तो पोजीशन डेबिट साइड ही आएगी, पर हम जो असेट खरीद रहे हैं उसका नाम आएगा. इट कैन बी एनीथिंग, बट इफ़ इट इज़ असेट, रिमेंबर आपको असेट का ही नाम लिखना है. सो हियर आई पुट द ऑन द पोजिशन ऑफ द परचेज डेबिट साइड ही फर्स्ट इफेक्ट में मैंने लिखा है फर्नीचर अकाउंट. अब देखते हैं ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 10,000 परचेज फ्रॉम राजेश. नाउ द नेम ऑफ पर्सन इज रिटन कि कहाँ से खरीदा, पर बाद में फॉर कैश नहीं लिखा है, तो ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. सो हियर विल राइट डाउन द नेम ऑफ अ पर्सन जहाँ से हमने खरीदा है, राजेश अकाउंट. नेक्स्ट, मशीन ऑफ रुपीज़ 20,000 परचेज ऑन कैश. नाउ दिस टाइम अ कैश ट्रांजैक्शन, और परचेज भी दिख रहा है. परचेज हो तो हमको आना है डेबिट साइड. सो आई एम ऑन द डेबिट साइड, बट दिस टाइम वी आर नॉट परचेजिंग गुड्स, वी हैव परचेज मशीन, और मशीन इज योर असेट. सो विल राइट डाउन मशीन, मशीन अकाउंट, एंड ऑन द क्रेडिट साइड विल राइट डाउन हमने खरीदा मशीन विद द कैश. हमने कैश से खरीदा है मशीन, तो कैश गया, इसीलिए विल गिव कैश ऑन द क्रेडिट साइड. Next, goods of rupees 20,000 sold to Rohini. Now goods 20,000 का sold कर दिया रोहिणी को. सबसे पहले मुझे सेल दिख रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द क्रेडिट साइड एंड आई एम गोइंग टू राइट सेल्स अकाउंट. नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज, हमको देखना है ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. यहाँ पे मुझे नाम दिख रहा है, और फॉर कैश, पेड, रिसीव वर्ड जैसे ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हमको नाम लिखना है, पर ये रोहिणी क्या है, रिसीवर है या गिवर है. सोल्ड टू रोहिणी, तो गुड्स रोहिणी रिसीव कर रही है. सो विल राइट डाउन द नेम ऑफ अ रोहिणी ऑन द डेबिट साइड, रोहिणी अकाउंट. मूविंग टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ, goods of rupees 8,000 sold to Salama on cash.
The main highlight word is sold and the cash. जैसे ही सोल्ड वर्ड दिखाई दे तो क्रेडिट साइड जाके हमको लिख देना है सेल्स अकाउंट। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर सोल्ड गुड्स हो रहा है तो ही हमको सेल्स अकाउंट लिखना है। अगर सेल कोई असेट होता तो हम सेकेंड पोजीशन यानी कि क्रेडिट साइड ही आते, लेकिन हम वो असेट का नाम लिखते। वी कांट राइट द सेल्स अकाउंट। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। परचेज और सेल हमको कब लिखना है? जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हमको परचेज यहाँ पे लिखना होता है। अगर गुड्स को हम बेच रहे हैं तो हमको लिखना है सेल्स अकाउंट। अगर इसी जगह पे असेट होता है तो असेट का नाम आएगा, सेल्स नहीं आएगा। सो हियर इन द सिक्स्थ ट्रांजेक्शन आई रोट द सेल्स अकाउंट एज वी हैव सोल्ड द गुड्स। अगर हम किसी गुड्स को बेचते हैं तो ऑब्वियसली पैसा आता है, तो पैसा आता है तो when cash is coming in we'll give the entry at the debit side by writing cash account. Next, moving to the next transaction, seventh, ओल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 10,000 सोल्ड टू राजेश। अब इस बार हम सोल्ड कर रहे हैं पर गुड्स नहीं, फर्नीचर यानी कि असेट को हम बेच रहे हैं। तो हम क्रेडिट साइड आएंगे वेयर वी राइट द सेल्स अकाउंट। सेल की पोजीशन क्रेडिट साइड ही होती है तो हम वहीं पर आएंगे, पर विल राइट डाउन व्हाट वी आर सेलिंग, असेट। तो असेट का ही नाम आएगा बाय राइटिंग फर्नीचर अकाउंट। अब ये कैश से हम सेल कर रहे हैं या क्रेडिट से? यहाँ पे कहीं हमको कैश वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैश से नहीं, हम क्रेडिट से सेल कर रहे हैं। किसको? तो राजेश को। फर्नीचर कौन खरीद रहा है? राजेश खरीद रहा है, तो राजेश बिकम द रिसीवर एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल्स। यहाँ पे रिसीवर राजेश है तो राजेश का नाम आएगा डेबिट साइड, लाइक दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट, machine of rupees 20,000 sold on cash. Now this time we are selling for cash. और क्या सोल्ड कर रहे हैं? मशीन। सोल्ड है तो विल कम टू द क्रेडिट साइड फर्स्ट एंड विल राइट डाउन क्या हम बेच रहे हैं। हम असेट बेच रहे हैं, इसीलिए हम असेट का ही नाम लिखेंगे। अगर गुड्स होता तो हम सेल अकाउंट लिखते। यहाँ पे हम मशीन को बेच रहे हैं तो मशीन दैट इज असेट, असेट को हमने क्रेडिट साइड डाल दिया। अब डेबिट साइड, बेचने पर हम कैश में बेच रहे हैं, तो जब हम बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, कैश इज कमिंग इन, सो विल कीप एट द डेबिट साइड बाय राइटिंग कैश अकाउंट। सो दीज आर द टेबल्स, इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। आपको एग्जैक्टली लिखना है लाइक दिस। Just to write down illustration 8, again I am repeating, don't write question. आपको क्वेश्चन कहीं नहीं लिखना है, just keep the textbook in front of you with the question number 8. Write down the page number 43 and this is how you have to make the solution. It's quite different from the textbook. टेक्स्ट बुक में थियोरटिकल वर्ड दिया है, पर आपको सोल्यूशन इस तरह से करना है। जस्ट पुट द टेबल एंड डोंट कॉपी फ्रॉम द बुक, सॉरी डोंट कॉपी फ्रॉम द वीडियो। आपको इसको सॉल्व करना है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। इफ यू आर नॉट श्योर विथ योर आंसर यू कैन यूज अ पेंसिल एंड मेक अ करेक्शन। नेक्स्ट, moving to the illustration 9 where we are learning in nominal account for transaction related to the income and expenses, which is at the center, which will be given in your textbook page number 44. Here we start with the first first transaction, rupees 5,000 paid for salary. As I already told you, never see the salary as your income. Salary is always see as an expense. यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन में अगर कहीं पर भी आपको सैलरी दिखाई दे तो डोंट थिंक दिस योर इनकम, इट इज़ ऑलवेज एन एक्सपेंस। बिजनेस के लिए सैलरी एम्प्लॉय को दिया जाता है और वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और आपको बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखना है बिकॉज यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रुपीज़ 5,000 पेड फॉर सैलरी। हियर द वर्ड पेड यानी कि पैसा गया, कैश गोज आउट। So the cash I'm writing at the second effect that is on the credit side. पैसा कहाँ गया? For paying salary. So salary is your expense, so it comes to the debit side as per the nominal rules. Salary account. Moving to the next transaction, rupees 3,000 paid for rent. Again the word comes paid. Again cash goes out. So we'll
write down cash account at the credit side. Why the cash goes out? The reason was rent have been paid. Rent is again expenses, so comes to the debit side. Again paid telephone bill for rupees 2000. Paid है, पैसा गया. Cash goes out, so cash account will be written at the credit side. पैसा क्यों गया? For paying telephone bill. Next is bad debt incurred for rupees 3000. This transaction is quite incomplete because bad debt incurred for what? Bad debt is one of the loss for the business. So this transaction again I'm skipping from this illustration. Normally it's your loss. तो इसका position होता है ये side, the debt account, but here the name is not written, so it is quite incomplete. Going to the fifth transaction, brokerage received. Received से समझ में आता है कि here we are receiving cash, so cash is coming in. So here cash account will be written on your debit side. How you are receiving? By receiving brokerage. So brokerage become the income. As per nominal rule, brokerage will come at the credit side. Dividend received rupees 3300. Again the word cash has to be written. Account, and why we are in what reason dividend received हो रहा है, so we'll write down dividend account at the credit side as per the nominal rules. Next, commission received. Again the word received is given, तो पैसा आ रहा है. Cash account will come at the debit side. Why the cash is coming in? In the form of commission we are receiving, and commission will become our income as per the nominal rules, so we are putting commission account at the credit side. Interest received. Again the word received, तो पैसा आ रहा है, so we'll put the cash account at the debit side. And in which form we are receiving? In the interest received. So interest account will come at the credit side. So here we finish the 9 transactions. This is how you have to write, same as illustration 7 and 8. Now for these, for more practice, you have to solve illustration 10, which is given on your page number 45, and illustration 11, which is given on your page number 46. Now here, put only 2 columns of debit and credit. No need to write the question for transaction, just give the serial number. Yani ki, now this is what is given on your page number 45, the solution of the illustration 10. They have put lot of column. Here I want only the serial number, debit effect and credit effect. That's it. Here they have explained you in very much detail, but you just have to give कि डेबिट साइड कौन सा अकाउंट एक्टिवेट होगा, तो कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन. सेकेंड इफेक्ट में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे डालना है, और कैश अकाउंट एट द क्रेडिट साइड. दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन मी illustration 10 and 11 for more practice. And also solve exercise from the exercise question number 4 and 5, which is given on your page number 50 in the same format like this. ऐसे ही फॉर्मेट में आपको बनाना है. जस्ट गिव द सीरियल नंबर फॉर द ट्रांजैक्शन, डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम. दैट्स इट.